अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। दोस्तों कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, जहाँ भी हैं ज़िंदगी में मज़े कर रहे हैं। हम रोज़ाना नए नए गेस्ट के साथ आते हैं लाइव। आज हमारे जो ब्यूटीफुल, प्यारे से, खूबसूरत से, हैंडसम से, स्मार्ट से गेस्ट हैं, सेलिब्रिटी गुरु प्रवीण पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो बिना इंतज़ार करवाए आपको उनसे गुजारिश करूँगा कि सर अपना तारुफ करवाएं पहले, फिर हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सर अपना इंट्रोडक्शन कीजिएगा, अपना माइक ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्रवीण पटेल साहब। Hello, I am Dr. PPP. I am the Celebrity Guru, award-winning author of the book You Are the Celebrity. I am the marathon man who ran not one, not two, not three, not four, not five, not six, not seven, not eight, not 9, not 10, but 11 marathons in my lifetime by God's grace, inshallah, and your blessings. First marathon in 1 week, 6th and 7th marathon in 1 week, 10th and 11th marathon in 1 week by God's grace, inshallah, and your blessings. And the Himalayas Guru is climbing the Everest, the Himalayas by God's grace, inshallah, and your blessings. If the celebrity Guru can write, so can you. If the marathon man can run, so can you. If the Himalayas Guru can climb, so can you. Life is the movie, you are the celebrity. Life is a celebration, you are the celebrity. Life is the marathon, you are the marathoner. Life is the book, you are the author. Life is the mountain, you are the mountaineer. I am the #1 international bestseller and the magnetic entrepreneur, award-winning author of the book Magnetic Entrepreneur, a personality that attracts. I am the Guinness World Records #1 international bestseller of the book Magnetic Entrepreneur, world renowned. I served in the Canadian Army as the engineer by God's grace, inshallah, and your blessings. I am showing this award and reward not to impress you, but to impress upon you. If the small boy who born in the beautiful world's beautiful country called Mother India's beautiful province called Gujarat's beautiful Gujarat, which gave Mahatma Gandhi and lots of other celebrities, that Gujarat province small village called Julasan, which gave NASA astronaut Sunita Williams. If that small boy village went to medical college and felt inferiority complex as well as homesickness, and became the final year dropout of medicine after putting the 8 years of his life. And that boy went to live his childhood dream to go to North America, and went to beautiful country, North America, beautiful country called Canada. And that boy lived about 25 years, half of his life in Toronto, Canada, English-speaking country, first world country, from homesickness, third world country to the English-speaking country. If that boy can do it, so can you. If that boy can write not one, not two, not three, not four, not five, but 6 books, and all the books are in English, so can you. That's why that boy showing all these awards and rewards, and that boy is none other than yours and the world's one and only, the celebrity guru, Dr. PPP. I am humbled, honored, blessed, privileged, and super excited to have myself in front of the gentleman, the YouTuber, the teacher, the motivational speaker, all the way from Dil Pakistan, Star Sheikh Siraz, Triple S. I'm Triple P, he's Triple S. Yes, 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 sir. Assalamu alaikum. Dr. PPP, the celebrity guru, nice to have you in my show. It's an honor for me that you give me your valuable time, and you are a person who have a lot of
awards, achievements like marathon engineer, medicine dropout. You belongs to India and then came to Toronto, Canada, and you spent your 30 or 40 years of life in that country. It's an amazing thing. You have done an amazing thing, and I'm super excited to having a time with you and having a live show with you. So, my first question to you is, Dr. PPP, please tell us about your childhood, how you spent your childhood. A great question, Dr. Sheikh. I mean, Mr. Sheikh, okay, or a triple SSS. My childhood. I born, एज आई टोल्ड यू, दुनिया के बेहतरीन से कंट्री हिंदुस्तान, मदर इंडिया के बेहतरीन से प्रोविंस गुजरात, जिसने दुनिया को महात्मा गांधी दिए, टुडेज प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी दिए, एंड लॉट्स ऑफ अदर सेलिब्रिटीज दिए। उसी गुजरात के छोटे से गांव जुलासन, जिसने दुनिया को नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स दिया, उसी छोटे से गांव जुलासन की छोटी सी गली महादेववास मीन्स टेम्पल स्ट्रीट, जहाँ पे वो देयर टू दो टेम्पल है। मेरे गांव में हालांकि छोटे बड़े 100+ टेम्पल है। हालांकि गांव का सबसे बड़ा जो टेम्पल है वो मुस्लिम देवी दौलमा का टेम्पल है। इवन तो गांव के 1000 साल की हिस्ट्री में भी नॉन हिंदू पर्सन रहा नहीं है, मगर वो टेम्पल गांव के लोगों ने एज वेल एज गांव के लोग जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं, उन्होंने बनाया है मुस्लिम देवी का टेम्पल। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ऐसी एक ही मिसाल होगी कि नॉन हिंदू पर्सन के गांव में सबसे बड़ा टेम्पल है 100 में से, वो हिंदू आई मीन मुस्लिम देवी का टेम्पल है, दौलमा का टेम्पल है। अच्छा, मैं बचपन में शाय बंदास था, एकदम पूरा शाय बंदा था, एकदम शाय। और मेरा एक्सक्यूज था, पहला एक्सक्यूज ये था कि मेरे को 2 भाई है, मेरे से एक बड़ी बहन थी, मगर छोटी सी उम्र में 1-2 साल की उम्र में अल्लाह ताला भगवान ने उसको जन्नत में ले लिया। तो मैं उनकी पिक्चर दीवार पे टांगी हुई देखी हुई थी, ठीक है। तो एक बात है कि मेरे को बहन अब पैदा हुआ इसके बाद मेरे समझने में बहन नहीं है, तो ये एक्सक्यूज था। दूसरा था मेरे को कि भाई मैं फॉरेन में जाऊंगा, उसमें भी अमेरिका ही मेरे रडार में था, तो मेरी दिलरुबा होगी वो मेरी लास्ट नेम वाली होगी। मेरे पटेल, उसमें भी सब डिवीजन होते हैं, कड़वा पटेल, लेवा पटेल, तो कड़वा पटेल होगी। कड़वा पटेल में भी सब डिवीजन होते हैं 42। तो मेरा लेजर फोकस था बचपन से कि मैं उस मकान पर एजुकेशन में पहुंच जाऊंगा कि मेरी दिलरुबा ढूंढती हुई मेरे घर पे आएगी, मैं मेरी दिलरुबा को ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगा। और वैसा ही भगवान ने जैसे सपना था ऐसा ही पूरा किया। 1994 February 5 पे मेरी शादी हुई, और वही साल 1994 में January 6 शाम के 6:06 और 6 सेकंड पे मेरे दिलरुबा ने पहली दफा मेरे दिल में, मेरे दिमाग में और दस्तक दी है। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मगर बचपन की बात आपने पूछा है, तो बचपन में मैं बहुत स्कॉलर बंदा था, बिकॉज मेरे फादर इज नॉट ओनली माय फादर, मेरे गॉड फादर। जो भी कुछ हूँ मैं अल्लाह ताला की वजह से हूँ, भगवान की, जिसको भी आप मानते हो उसकी वजह से हूँ। इसके बाद वो मेरे फादर और मेरे गॉड फादर उसकी वजह से हूँ। जो भी आप मेरे को देख रहे हैं, द सेलिब्रिटी गुरु और जो भी टाइटल, रिवॉर्ड एंड अवार्ड्स, मैं मेरे फादर का इवन 1% भी नहीं हूँ। मेरे फादर 100% है, तो मैं उनके 1% भी अभी नहीं पहुंचा हूँ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं मेरे फादर कहाँ पे पहुंचे हुए हैं ऑलरेडी। एंड अभी भी वो 75+ के है, और 75 का गोइंग सो स्ट्रांग, लाइक शेर है, अभी भी शेर है माना, दहाड़ते है माना। तो ये बात है। अच्छा, तो कौन सी गेमें अच्छी लगती थी मेरे को, तो मेरे फादर ने मेरे को चेस खेलना सिखाया था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। बचपन में वो मोनोपोली करके वो गेम आती थी, नवा व्यापार, वो बिजनेस का वो गेम आता था। तो उसमें वो खेलता था। ताश बहुत खेलता था, हालांकि कभी भी जुआ नहीं खेला हूँ, ठीक है, जुआ नहीं खेला हूँ, मगर ताश के मैजिक ये सब बहुत खेला है। अच्छा, तो इसके बाद मेरी स्कूलिंग डिफरेंट हुई, मेरे गांव में भी हुई। इसके बाद मेरे फादर वो क्लर्क थे स्कूल में, तो वहाँ भी वो जहाँ जिस टाउन में थे वहाँ पे मेरी स्टडी हुई। इसके बाद वो वापस मैं मेरे गांव पे स्टडी करने के लिए आया। इसके बाद वो मेरे गांव के बाजू का गांव था, वहाँ मैंने 8, 9, 10 किए। वो अबाउट चल के जाते थे, अबाउट लाइक 125-130 स्टूडेंट्स मेरे गांव से जाते थे। तो वहाँ पे किया। इसके बाद मेरे 11-12 जब मेरे को अच्छा मार्क्स 10 में आया, ग्रेड 10 में पूरे
ग्रेड 10 में पूरे और ग्रेड 12 में पूरे वो नेशनल लेवल की एग्जाम होती है। तो ग्रेड 10 में मैंने अच्छे मार्क्स लाए। इसके लिए मेरे को अहमदाबाद में, मेरे गांव से 40 किलोमीटर नजदीक बड़ा सा सिटी है, इंडिया का बहुत बड़ा सा सिटी है, गुजरात का बहुत बड़ा सिटी है, वहां पे मेरे को हॉस्टल में एडमिशन मिला। और वो हॉस्टल और वो कॉलेज में मिला। हालांकि मैं 11 में 12 कॉलेज नहीं होता है, 12 के बाद कॉलेज होता है, मगर मेरा एडमिशन ग्रेड 11 में गुजरात कॉलेज में हुआ, जहां महात्मा गांधी वो फ्रीडम मूवमेंट चलाते थे। तो उस एनवायरनमेंट में मेरा वो वहाँ हुआ। मगर इवन दो मेरे को बचपन से बहुत नाजों से पाला गया और बड़ा बच्चा था, तो मैंने ना बहुत सारे ड्रीम थे, से वो थे, तो मेरे को होम सिकनेस फील हुआ जब मैं 40 किलोमीटर अवे मेरे गांव से हॉस्टल में रहने के लिए गया। 40 किलोमीटर नथिंग, आज के जमाने में 40 किलोमीटर नथिंग, बट फिर भी आई फेल्ट होम सिकनेस। ठीक है, तो बार बार घर चलाता था, बार बार घर चलाता था। इसके बाद मेरा सपना था, अच्छा मेरे सपने की बात करूँ तो मैं ग्रेड सेकंड थर्ड में था, तो मेरा सपना, मेरे फादर ने कंटेनर दिया था वो पेंसिल पेंसिल रखने के लिए। तो उसमें वो पिक्चर था, एक बढ़िया सा ब्लू कलर का एयरप्लेन का पिक्चर था, और बढ़िया सी वो एयर होस्टेस का पिक्चर था। तो मैंने पहला सपना देखा कि मैं पायलट बनूंगा, लोगों को दुनिया घुमाऊंगा और मैं भी दुनिया घूमूंगा। ठीक है, ये सपना था। और अभी भी मैं 25 से भी ज्यादा कंट्रीज में घूम चुका हूँ, अगेन बाय गॉड ग्रेस। 100 से ज्यादा दफा मैं अमेरिका जा चुका हूँ, हालांकि मैं रहता हूँ कनाडा में, मगर 100 से ज्यादा दफा मैं अमेरिका जा चुका हूँ। ठीक है, तो वही सपना पूरा हो गया। हालांकि पायलट नहीं बना, जैसा डिफरेंट स्टोरी, मगर लोगों को माना बिना प्लेन घुमाता हूँ, माना अपने दिमाग से, दिल से। ठीक है, तो ये बात हो गया। अच्छा, दूसरा मेरा सपना था जब मैं टीनेजर्स बना, 13 14 का होऊंगा, मैंने मेरे फादर से बोला कि मैं ऐसा स्पिरिचुअल गुरु बनूंगा कि दुनिया ने अब तक पैदा न किया हो, अब तक देखा ना हो। ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी सिखाने वाले ऑफकोर्स रब होता है, अल्लाह होता है। ठीक है, दूसरा मेरे फादर ने भी बहुत स्पिरिचुअलिटी सिखाई, और सभी माना वो टेंपल में जाते थे, सब वो सब। इसके बाद मेरे फादर बहुत सारे वो स्पिरिचुअल लीडर से भी मिलाते थे, सब वो सब। तो बचपन से ही वो स्पिरिचुअलिटी भी कुट कुट के पड़ी थी। ठीक है, मगर वही फादर जिसने स्पिरिचुअलिटी के लेसन सिखाए, वही फादर ने मेरे को, जब मैंने कहा कि मैं स्पिरिचुअल गुरु बनना चाहता हूँ और बनूंगा, और ऐसा गुरु की माना अभी तक पैदा हुआ ना हो, तब मेरे फादर ने बोला कि यू आर द लाइट हाउस फॉर आवर फैमिली। लाइट हाउस होता है ना, वो समंदर में वो कश्तियों का मानना डायरेक्शन देता है। हाँ जी हाँ। तो इमोशनल ब्लैकमेल इसे कहा जाता है, इमोशनल ब्लैकमेल। कैसे सपने चुराए जाते हैं, इवन अपने ओन भी सपने चुरा लेते हैं। तो मेरा सपना चुरा गया। ओके, तो दैट्स ओके, मेरे फादर इज नॉट ओनली माय फादर, माय गॉड फादर। मैंने तीसरा सपना देखा कि मैं इंजीनियर बनूंगा। क्यों? क्योंकि आई लव मैथमेटिक्स बचपन से अभी तक, और मरते दम तक मैं मैथमेटिक्स को प्यार करता रहूंगा। तो मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग मैंने सोचा कि गोज टुगेदर, तो हम इंजीनियर बनेंगे। मेरे फादर ने बोला बेटा तेरे को डॉक्टर बनना है। सो पायलट का सपना, गुरु बनने का, स्पिरिचुअल गुरु बनने का सपना, और इंजीनियरिंग का सपना, तीन सपनों को मैंने ठोकर मारी। और मैं अपने फादर का सपना जीने के लिए मेरे गांव से अबाउट 400 किलोमीटर नजदीक सूरत करके, वो बहुत बढ़िया सा सिटी है गुजरात का और इंडिया का, सूरत। सूरत के बारे में कुछ 3 4 बात मैं बता दूं। सूरत इज द वर्ल्ड डायमंड सिटी, दुनिया का डायमंड सिटी कहा जाता है। बहुत सारे डायमंड की फैक्ट्रियां है सूरत में। दूसरा, इट्स टेक्सटाइल सिटी, बहुत सारे टेक्सटाइल बिजनेस सूरत में है। तीसरा, सूरती खाना बहुत फेवरेट है। सूरती खाना माना कहा जाता है कि सूरती खाना और काशी का मरण। मरे तो काशी में मरना, काशी माना बनारस, जो जहाँ से वो मोदी जी वो आए थे वो चुन के। ठीक है, तो मरना हो आपको तो काशी जाना, और खाना हो तो सूरत में जाना। बेसिकली ऐसे वो एक्सप्रेशन है। और चौथी बात है, सुरती लोग गाली बहुत बोलते हैं। जैसे यहाँ फॉरेनर्स में लोग एफर्ट बोलते हैं, ऐसे सुरती लोग गाली बहुत बोलते हैं। मगर सुरती गाली माना कॉमा फुल स्टॉप की तरह आती है, आपको दिल को लगती नहीं है, एज लाइक ब्रदरली वो होती है। ठीक है ना, तो वो सिटी में मेरा हुआ। तो कैन यू इमेजिन मेरे दोस्त शेख साहब की, जब 40 किलोमीटर में मैंने इतना होमसिक फील किया, तो उससे 10 गुना बाहर में हॉस्टल में रह रहा था, 400 किलोमीटर। तो मैंने बहुत होमसिक फील किया। इसके बाद बड़ी बड़ी यार, मैंने अप टू ग्रेड 12 मैंने मेरी मदर टंग में स्टडी किया। ठीक है, विच इज गुजराती में। अब ग्रेड 12 के बाद मैं मेडिकल में गया, तो बड़े बड़े इतने किताबें आती थी, बड़ी बड़ी किताबें यार, मैं आपको बताऊं, बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी किताबें आती थी यार, और वो भी सभी इंग्लिश में यार। और मैं तो बच्चा पैरट की तरह, मैं तो बंदा पैरट की तरह रट्टा मारने वाला बंदा था। ठीक है ना, अप टू ग्रेड 12 मैंने बहुत रट्टा मारे, बहुत रट्टा मारे। ठीक है, इवन मेरे फादर मेरे को स्पीचेस लिख देते थे मेरे लिए, मैं रट्टा मारता था, और स्कूल में बोल में वो बोलता था। तो मैंने ग्रेड 5 से मैंने स्पीचेस देना भी शुरू किया। ठीक है, तो
वो भी था। हाँ, तो रट्टा मारने की बिकॉज ऑफ दैट मेडिकल कॉलेज में थोड़ा रट्टा चलेगा इसके बाद होम सिकनेस ये सब वो सब, तो मैं फेल फेल होता रहा। इसके बाद फाइनली पास, और मेरे को ये लगा कि भाई मैं मेरे फादर का सपना जी रहा हूँ, मैं मेरा सपना नहीं जी रहा हूँ, तो ये भी वन ऑफ द रीजन की फेलियर होने का। तो हाँ, फेल फेल होता रहा, पास हुआ, फेल फेल होता रहा, पास हुआ सेकंड एमबीबीएस में, फेल फेल होता हुआ, और फाइनली 1994 में मेरी शादी हो गई। तो एक और डिस्ट्रैक्शन मेरी बीबी शादी करके वापस यहाँ टोरंटो कनाडा में आ गई। तो एक और मैं सोने जाता था तो रात को तो मेरा पार्टनर कहता था कि ये डॉक्टर पीपीपी तो चले गए, माना ड्रीमलैंड में चले गए, कनाडा चले गए, ठीक है ना। तो ऐसा बात था। तो ऐसा करते करते फाइनली आई बिकेम फाइनली ड्रॉप आउट इन 1996। और इसके बाद वो मेरे बचपन का सपना वो था फॉरेन जाने का। तो वो सपना जीने के लिए मैं 96 में वो टोरंटो कनाडा गया, और लास्ट 24 साल से कनाडा हूँ। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी मैंने आपसे शेयर की। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिलीव करें दिल कर रहा है इसको बंदा सुनता जाए सुनता जाए सुनता जाए और बोले कुछ ना। सो बड़ी मज़ेदार जर्नी है आपकी डॉक्टर पीपीपी। सो अब यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने शादी जो है वो एक फॉरेनर से की थी जो कनाडा में मुकीम थी, आपकी जो मिसेज थी, और दूसरी अगला बात सुन लीजिएगा काइंडली, इसके साथ ये कि फिर आप एक रिमोट एरिया में रहते थे, इंडिया में रहते थे, इंडिया से कनाडा में जाना एक बहुत मुश्किल काम है। तो कैसे आपने वीजा के लिए अप्लाई किया 1996 में, क्या सारा प्रोसीजर था? अच्छा, आपने थोड़ा कुछ मिस किया। मैंने बोला था कि मेरा सपना था बचपन का कि मेरी दिलरुबा होगी वो मेरे लास्ट नेम वाली पटेल पटेल होनी चाहिए। सब डिवीजन पटेल में होते हैं, कड़वा पटेल वो होनी चाहिए, और इसमें भी सब डिवीजन होना चाहिए 42। सो 42 कड़वा पटेल वाली ही जो टोरंटो में रहती थी वो मेरे गांव गांव आई फैमिली के साथ शादी मनाने, और उससे शादी की। सो फॉरेन में रहती थी, 5 साल की उम्र से वो फॉरेन में रहती है, कनाडा में रहती है। हाँ, तो ऐसे जो फॉरेनर्स नहीं थी, मगर हाँ देखिए इंडिया में पैदा हुई, मगर 5 साल से वो फॉरेन में ही रहती थी, तो ऐसे थी, ठीक है। दूसरा, कैसे मैंने सेट किया कनाडा में, तो बचपन का सपना था। बचपन का सपना था कि सपना था, अमेरिका का सपना था। तो मैंने वो जब वेडिंग कार्ड देखा ना, मैंने मेरा वेडिंग कार्ड देखा तो उसमें कनाडा लिखा था कि कनाडा से आई हुई मेरी दिलरुबा है, ठीक है। मैंने मेरे फादर को बोला कि फादर फादर ये तो मिस्टेक हो गया, क्या वेडिंग, ये तो मैंने अमेरिका होना चाहिए, कनाडा की किस बला का नाम है। तब तक मेरे को मालूम था कनाडा क्या चीज है, बिकॉज आई वाज सो लेजर फोकस विथ यूएसए यूएसए यूएसए, अमेरिका अमेरिका अमेरिका। इसके बाद मेरे फादर ने बोला कि बेटा कनाडा एक कंट्री है, कनाडा एक कंट्री है और अमेरिका का नेबर है। मैंने बोला, तब तक मैं मेरी बीवी से वो प्यार कर चुका था, ये सब वो सब था, ठीक है। तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो मैंने बोला चलो यार तो ये बात है। यानी इसके बाद मैंने बोला ना कि भाई मैं कनाडा में रहता हूँ 24-25 साल से, मगर फिर भी अमेरिका 100 से भी ज्यादा दफा गया हूँ। कभी ड्राइव करके गया हूँ, कभी मैं बाय बस गया हूँ, कभी फ्लाई करके गया हूँ। तो मैं वो भी सपना मैं जी रहा हूँ, अमेरिका जाने का सपना, और स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में तो हुई, बिकॉज कनाडा अमेरिका भी नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। तो ये बात है, वो कैसे मैं सेट हुआ, तो वो सपना था, तो इसके लिए यही बात है। दूसरी बात, यस, इंग्लिश की वजह से मैंने बहुत कुछ यहाँ भी सफर किया, ऐसे मेडिकल कॉलेज में सफर किया था, यहाँ भी सफर किया था, ठीक है ना। तो हाँ, मगर आई एम प्राउड ऑफ माई एक्सेंट, मैं एक्सेंट मेरी कभी नहीं बदलूंगा, जो मेरी एक्सेंट है ये। और इंग्लिश कैसे मैंने वो किया, तो मैंने I surrounded with like-minded people, I surrounded with like a positive attitude kind of people। मैंने बहुत सारे इवेंट अटेंड किए, बहुत सारे मैंने बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग की इवेंट, ये सब वो सब। मैं नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट अटेंड करने के लिए मैं यहाँ से अमेरिका जाता था, 5-5 6-6 दिन के लिए यहाँ से अमेरिका जाता था, ठीक है और वो भी मैंने मल्टी मल्टी मिलियनर लोग वहां से स्पीच देते थे। और उसमें बढ़िया बात ये थी कि बहुत सारे लोग स्पेशली हमारे इंडिया के ही थे। और वो माना वो एमवे की बात कर रहा हूँ मैं, एमवे की मीटिंग में भी जाता था। एमवे बहुत बढ़िया कंपनी है, ग्रैंड फादर ऑफ द ऑल दी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और एमएलएम कंपनी 1959 से है। तो वो स्पीकर को तो मेरे को लगता था कि देखो यार इंग्लिश पीपल ने इंडिया पाकिस्तान को रूल किया था 1947 के पहले। देखो अब हम रूल कर रहे हैं। माना 30-40 थाउजेंड का अरीना होता था, वेन्यू होता था, उसमें माना 30,000 लोग तो हमारे इंडियन इंडियन पाकिस्तान रूट के दिखाई देते थे। तो मैंने बोला देखो यार वी हम रूलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात थी। तो हाँ जी यार, इसके बाद तो देखो यार, इधर यू स्विम और सिंक, ठीक है ना। आपको माना तालाब में और स्विमिंग पूल में डुबाए माना फेंका जाए, तो इधर माना स्विम करोगे और डूब जाओगे, दोनों में से एक होगा। तो अब आप डिसाइड करें कि मैं स्विम कर रहा हूँ कि मैं डूब गया हूँ। मैं दुनिया पर छोड़ देता हूँ, मैं तो जानता हूँ कि मैं ओशन पूरा स्विम कर रहा हूँ। ओके जी।
ये बड़ी अमेजिंग लाइफ जर्नी है डॉक्टर पीपीपी। आप 1996 में कनाडा चले गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिए जब कोई बंदा किसी दूसरे कंट्री में जाता है सबसे पहले जाके उसको होता है कि जॉब कौन सी की जाए। आप चूंकि पीछे एमबीबीएस के ड्रॉप आउट थे, आप मेडिकल की फील्ड से ड्रॉप आउट थे यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, देन आपने वहां पे जाके कौन सी जॉब की, क्या बिजनेस किया, क्या सीखा, और कैसे मतलब उस जर्नी को आगे फिर स्टार्ट किया अपने पेट को पालने के लिए, अपना वो क्या किया आपने? सवाल आपने, मैंने हजारों इंटरव्यू दिए है मगर ये सवाल किसी ने नहीं पूछा है, तो आपने बहुत यूनिक सवाल पूछा है। तो चलो इसकी जर्नी में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं 96 में आया। 96 में आया तो मैं मेरे इनलॉज के वहाँ मैं रहने लगा, इनलॉज के वहाँ रहने लगा, ठीक है। इसके बाद मैं जुलाई में आया और अगस्त में मेरी बीबी चली गई वो बीएड करने के लिए, वो टीचर बनने के लिए बीएड का कोर्स होता है। वो मेरे से 400 किलोमीटर्स दूसरा वो कनाडा का सिटी है, कनाडा अमेरिका के बॉर्डर पे, वहां चली गई। तो अगेन फिर भी आया 2-3 साल के 2-2.5 साल के बाद फिर भी वो बीबी को जाना पड़ा, तो अगेन वहां भी बीबी को मिस करने लगा, ठीक है, ये बात है। अच्छा, दूसरी बात, मेरे इनलॉज ने एक उनका वो फ्रेंड था, वो बॉस था कंपनी में, वहां पे मेरे को लगा दिया, ठीक है। और वहां पे मेरी पहली सैलरी थी $5.65, एकदम एकदम लोअर। उस जमाने में वो मिनिमम वेज कहा जाता है ना, मिनिमम वेज, ठीक है। $5.65 से उस, अभी वो $14 मिनिमम वेज है। इससे 3 गुना ऑलमोस्ट मिनिमम वेज हो गए हैं लास्ट 25 साल में। अच्छा, तो ऐसे हुआ, ठीक है। इसके बाद जनवरी में मेरे इन-लॉज ने डिसाइड किया, बिकॉज हाँ, इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं, देखो बिगनिंग में मेरे फादर का सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। इसके बाद वो सपना मेरा हो गया, ठीक है ना, कि मैंने बोला कि मैं यमराज है ना, यमराज उसे कहते हैं जो गॉड ऑफ डेथ है, उसको यमराज कहते हैं। तो यमराज के साथ मैं चैलेंज करता था कि यमराज, डोंट यू डेयर टू टेक माई लाइफ राइट नाउ। जब तक मैं नॉर्थ अमेरिका में डॉक्टर नहीं बनूंगा तब तक जान लेने के लिए नहीं मत आना, वरना आएगा ना तो मैं वापस तेरे को भेज दूंगा जब तक मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। तो मैं, मेरी चैलेंज थी यमराज के साथ, ठीक है। तो ये था। तो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, मेडिकल डिपार्टमेंट में गया और मैंने वो पूरा स्टोरी बता दिया कि ऐसी मेरी स्टोरी है और यहाँ पे मेरे को डॉक्टर बनना है। तो उन्होंने बोला वेरी गुड, एक एग्जाम है आपको देना पड़ेगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, MCCQE एंड मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा इवेल्युएटिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। मैंने तो उसके लिए $1000 पे कर दिए। वहां से 2 बुक मंगवा दी। मैंने मेरे फादर को बोला कि पापा पापा, वो सब मेडिकल की बुकें फिर से भिजवा दे, मैं अब यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में डॉक्टर बनूंगा। तो पापा खुश हो गए, मैंने बड़ा सा मैंने पार्सल भेज दिया मैंने, ठीक है। वहां पे जॉब भी करता था, लेबर जॉब करता था, ठीक है। लेबर जॉब करता था और पेपर भी करता था। और एक महीने के बाद मेरे को लेटर मिला कि डॉक्टर पीपीपी, इस एग्जाम में आप अपेयर नहीं कर सकोगे। मैं इसके बाद मैं लेटर लेके वापस गया, वो जहाँ पे डाउनटाउन में, टोरंटो के डाउनटाउन के मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल सेंट जॉर्ज कैंपस मेडिकल मेडिसिन डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। और बोला कि आपने तो मेरे को सपना दिलाया था, अब क्या हुआ, मेरे को तो लेटर मिला। तो बोले कि आपके पास 2 ऑप्शन है, आप इंडिया वापस जाए, फाइनल ईयर की जो कुछ सब्जेक्ट बाकी रह गए हैं वो क्लियर करे, इसके बाद वहाँ पे इंटर्नशिप होती है 1 साल की, वो क्लियर करे, इसके बाद आप वापस आए एंड इसके बाद आप इस एग्जाम में अपियर करें। वो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप, हम आपको यहाँ पे मेडिसिन के फर्स्ट ईयर में हम डालते हैं, फर्स्ट ईयर में, और बिगनिंग में फिर से वो 0 से 1 2 3 4 लिखना शुरू करो, ABCD करना शुरू करो मेडिसिन में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है। और हम ओनली 8 सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर्स, और ईच सेमेस्टर के हम ओनली 50,000 कैनेडियन चार्ज करेंगे। कैन यू इमेजिन, मैं एक महीना इस देश में था, एक महीना एक देश में था, और 50,000 6 महीने के, माने 8 सेमेस्टर के 4,04,000 कैनेडियन डॉलर्स, ठीक है। उस वक्त मेरे को 400,000 में तो ये था, ठीक है। तो और मेरे मेरे फादर इन लॉ थे, वो अफोर्ड करने वाले थे, बहुत पार्टी वाले थे, ठीक है। मगर मेरा उसूल था कि मैं और मेरी वाइफ दोनों का उसूल था कि हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, ठीक है। हाँ, क्या बोलते हैं कि भाई, हाँ, तो ऐसा था। तो इसलिए फिर भी मैंने क्या किया, वो छोड़ दिया। इसके बाद एक दफा मैं टीवी देख रहा था, इंडियन प्रोग्राम देख रहा था, तो इसमें एडवर्टाइज आई कि आपको डॉक्टर बनना है, तो मैंने होम्योपैथी डॉक्टर बनना है तो ये यहाँ पे कांटेक्ट करें। मैंने कांटेक्ट किया और मेरी वाइफ को भी माना। मैंने, वो उनका भी सपना था कि कायरोप्रैक्टर बने, कायरोप्रैक्टर होता है ना जो बोन बोन फिक्स करता है, सब वो सब, ठीक है ना।
तो उसका अमेरिका में उसको एडमिशन भी मिला था, मगर उनका भी वही था कि मैं अपने पैरों पे वो एडमिशन पे और जाऊंगी। तो उस वक्त भी यार वो स्टूडेंट कर के पास क्या पैसे होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वो अमेरिका में एडमिशन मिला था, फिर भी नहीं जा सके थे कनाडा से। और अगेन फादर इन लॉ बहुत रिच पार्टी है, मगर फिर भी अपने पैसों से उनको जाना था। तो मैंने बोला कि तेरा भी सपना डॉक्टर बनने का, मेरा भी सपना था, तो चलो हम दोनों होम्योपैथी डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, तो हम दोनों होम्योपैथिक डॉक्टर बने, तो दैट्स हाउ आई से डॉक्टर पीपीपी, होम्योपैथिक डॉक्टर कनाडा में। और मैं कनाडा का सबसे बड़ा प्रोविंस है ओंटारियो, उसका उसका डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर हो, वो अकेला डॉक्टर हो जिसने साइकोलॉजी में सर्टिफाइड किया है। सो आई हैव अ सर्टिफिकेट साइकोलॉजी में, एंड आई लव माइंड, यू नो दैट आई लव माइंड बिकॉज मैं मेडिकल कॉलेज में ड्यूरिंग द मेडिकल, बिकॉज मैं तो मेडिकल कॉलेज में तो कैसा डड्डे का ड बनता था, ठीक है ना, राइट, बहुत मना वो, राइट। तो बहुत कुछ मैंने जब जब एग्जाम आती थी तब मैंने बहुत सफर किया है, बिकॉज डिप्रेशन एंग्जाइटी ये सब, बिकॉज पूरे साल वो पढ़ने का जी नहीं करता था, लेक्चर वेक्चर बंक कर रहा था, मूवीज वूवी देखने चला जाता था, ड्रामा ड्रामा देखने चला जाता था। और सूरत में तो मना बॉम्बे के नजदीक है, बॉम्बे से में भी अराउंड 300-400 किलोमीटर, से बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते थे मना ड्रामा करने के लिए अवार्ड नाइट ये सब वो सब। तो मैं तो मना मेरा वो शौक हो गया था, बिकॉज मैं मेरे फादर को ना नहीं कह सकता था कि पापा पापा मेडिकल में मेरा जी नहीं लग रहा है, फेल होता था वो होता था, मगर फिर भी मना हाँ तो इस था। और मेरे फादर इज लाइक द ठाकुर, शोले का ठाकुर है ना, ठाकुर, गब्बर, गब्बर नो ठाकुर नहीं, गब्बर, शोले का गब्बर, ठीक है। तो हाँ ये था, ठीक है, तो वो गैप थोड़ा रहा है, राइट, तो ये बात थी, बिकॉज मेरे फादर लाइक मेरे लिए आइकॉन थे, तो वहां पे थे, मैं लाइक बड़ी बड़ी नहीं समझ सकता ना, बिकॉज जो मेंटर होता है, कोच होता है, आइकॉन होता है, ग्रैंड लाइक, तो ऐसा था, तो कभी भी मैंने इतना नहीं हो चुका, ठीक है ना। तो ये बात थी, तो इसीलिए जीने के लिए, और बचपन से बॉलीवुड, मेरे अंकल को बॉलीवुड थिएटर था, तो बहुत सारे मूवीज मैंने फ्री में, अंकल का थिएटर माना मेरा थिएटर, ठीक है ना, तो मैंने बहुत सारे मूवीज अपर स्टॉल में, बालकनी में, प्रोजेक्टर रूम होता है ना, प्रोजेक्टर जहाँ से वो फिल्म निकलती है, तो वहां से भी बहुत सारे मूवीज देखे, तो बॉलीवुड ने भी मेरे को वाइल्ड स्ट्रीमर बनाया। तो मैं सेलिब्रिटी का ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ ये सब करने लगा, उनका इंटरव्यू लेने लगा, ये सब वो सब करने लगा, ठीक है ना, तो ये सब करने लगा, तो ऐसे मेरी जिंदगी मेडिकल में चल रही, तो मेरा ऐसा था। तो यहाँ पे मैं फिर करने लगा, हम दोनों होम्योपैथी डॉक्टर बन गए। उसके बाद 2008 में अगेन वो मैं इंडियन प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एडवर्टाइज आई कि आपको मना मेडिकल डॉक्टर बनना है, तो कैरेबियन यूनिवर्सिटी में ये सेमिनार है, ये सब वो सब, और आए हैं सेमिनार के, तो मैंने वहां पे अटेंड किया। तो उन्होंने बोला कि या श्योर व्हाई नॉट, आपने जो 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 मेडिसिन में आपने जो जो किया है वो सब सबमिट करें, एंड देन विल गो फ्रॉम देयर। तो मैंने वो सबमिट बमिट किया, और मना उन्होंने बोला कि वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मना कैरेबियन यूनिवर्सिटी में मेडिसिन में आप हो, और आपको एग्जाम हम देते हैं। जनरली क्या होता है कि लेट्स से 4 साल का वो कैरेबियन में वो मेडिसिन बनने का वो कोर्स है, उसमें 4 साल में से 2.5 साल आपको कैरेबियन में जाना होता है, इसके बाद 2 साल की आपको क्लिनिकल रोटेशन अमेरिका में करने होते हैं, ठीक है। मेरे को बोला कि मेरे को कैरेबियन में 2.5 साल जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ मेरा मेडिसिन बैकग्राउंड, सो वो एक्सटेंड हो गया, ठीक है। इसके बाद 2 साल नहीं जाना है मेरे को अमेरिका में, मेरे को ओनली 12-12 वीक के 3 क्लिनिकल रोटेशन, माना 9 मंथ्स ही जाना है, ठीक है, राइट। और तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्या बात है, 20 साल के बाद मैं सब कर रहा था, ठीक है, एग्जैक्टली 1988 में मैं, मेरा पहला दिन था मेडिसिन में इंडिया में, और यहाँ पे 2008 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो खुश हो गया, क्या बात है। और बात भी कि ईच सेमेस्टर मेरे को $7,000 अमेरिकन देने पड़ेंगे, ठीक है, $7,000, तो 3 सेमेस्टर के 21,000 अमेरिकन डॉलर, ठीक है। और जनरली क्या होता है, जो बंदा ग्रेड 10, जो बंदा फ्रेश जाता है ना, उसको माना 100,000 जैसा खर्च होता है। मेरे को बोला कि चलो 21,000 में मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो मैं खुश था। इसके बाद उनकी ईमेल आई कि भाई डॉक्टर पीपीपी, आपको 7,000 देने हैं, तो पहले सेमेस्टर के लिए आप 7,000 प्लस दूसरे 12,100 दे। मैंने बोला कि बात तो हमारी इस सेमेस्टर 7,000 हुई थी, 1,200 की क्या बात है। तो वो बोले कि बिकॉज यू आर कमिंग विदाउट गिविंग दिस एग्जाम कॉल CFMG, एंट्रेंस एग्जाम होती है वो। मैंने बोला नहीं है, वो पहले और पीछे मेरे को पास तो करनी है, तो मैं पहले ये एग्जाम पास करता हूँ, तो मैं 1,200 में बचाऊंगा, पटेल हूँ यार, गुजराती हूँ, तो थोड़ा पैसा की तो ठीक है ना, तो मतलब $3,600 में बचाऊंगा पहले, इसके बाद मैं आऊंगा। तो वो $3,600 मैंने यहाँ पे दिए, यहाँ पे वो टोरंटो में CFMG जो एग्जाम है उसको पास करवाने वाली वो, उसको प्रिपेयर कराने वाली वो संस्था है, तो वहां दिए। मगर अगेन मैं 20 साल के बाद मैं वो प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है। तो
क्या हुआ, पहले दिन मैंने वही अटेंड किया एक दिन पूरा, तो सब थिंग मेरे सब एवरीथिंग वाज गोइंग फ्रॉम माय रूप, है ना, मेरे से ऊपर से सब जा रहा था वो लेक्चर वेक्चर सब, बिकॉज यार मेडिसिन इंडिया में भी वो वैसा ही हो रहा था, तो यहाँ पे तो वैसा ही 20 साल के बाद तो वैसा ही होएगा ना, राइट, राइट। तो मैंने मेरे कोऑर्डिनेटर से बोला कि यार मेरे को आई नीड माई मनी बैक, मेरे को जो 3600 दिया वो मेरे को मनी दो। बोले मनी तो वापस नहीं करेंगे हम, इधर माना आप माना यहाँ से कंटिन्यू करें और हम आपको नर्सिंग का प्रोग्राम देते हैं, मगर मनी तो वापस नहीं मिलेंगे, इसकी बात तो छोड़ो। तो मगर इसने एक बात बोली उस वक्त कि देखो मैं बीमार होती हूँ, मैं सिक होती हूँ, खुदा न खास्ता, तो मैं आपके पास आऊंगी, क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी होम्योपैथी डॉक्टर हो, और इसके बाद जब आप मेडिकल डॉक्टर बन जाओगे यहाँ पे, तो मैं आपके पास ईस्ट और वेस्ट दोनों मेडिसिन का नॉलेज है, तो मैं आपके पास आऊंगी। एक सेंटेंस मेरे को दिमाग में लग गया कि सही बात है उसकी, तो इसलिए मैंने वो नर्सरी में भी नहीं गया, मैं कंटिन्यू किया। तो ऐसे करके करके 21 डेज खत्म हो गए। 21 डेज में जो फर्स्ट एमबीबीएस और सेकंड एमबीबीएस के टोटल 7 सब्जेक्ट है, वो 7 सब्जेक्ट 21 डेज में खत्म हो गए। वहां पे मैंने मेडिसिन में 8 साल में से बहुत 6 साल वहां पे गुजारे थे, ठीक है, और 6 साल का जो गुजारा था यहाँ पे 21 डेज में खत्म हो गए। तो कैन यू इमेजिन मेरे दिमाग पे दिल पे क्या मैंने दही किया होगा उस लोगों ने, ठीक है, राइट। तो इसके बाद वो 21 डेज के बाद मेरी वाइफ ने बोला कि देखो कितने बजे ओपन होता है, मैंने बोला 10 बजे ओपन होता है। कितने बजे क्लोज होता है, मैंने बोला 10 बजे क्लोज होता है। मेरी वाइफ ने बोला कि जब ओपन हो तो आप पहले पर्सन होने वहां होने चाहिए, और जब खत्म हो इसके बाद आप द लास्ट पर्सन होने चाहिए, तब तक आपको वहां पे रहना है, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए एग्जाम के लिए। तो मैंने एक वीक तो ऐसा किया, और 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने के, मैंने 16 आवर्स मैंने 7 दिन लगाए, ठीक है, 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने के, इसके बाद 12 घंटे 12 घंटे 12 घंटे। क्या नहीं मैं जो बंदा माना इतना मेडिसिन में वो था, ठीक है, ढड्डे का ढ बंदा, वो बंदा माना 7 दिन 14 14 12 12 12 घंटे 7 दिन, तो मेरा दिमाग का दे हो गया, मेरे को स्ट्रेस आ गया, और मेरे को वो सोने गया मैं वो सितंबर, तो मेरे को वो ठंड के नवंबर अबाउट 21 की ये बात है, नाइट को बाहर स्नो था, ठंड थी, ये थी वो थी, मैं घर में पहुंचा फाइनली वो 16 घंटे बाहर लगा के वहां जाके। तो मेरे को माना पेन शुरू हुआ हार्ट में, माना 1 to 10 में से, लाइक 9 जैसा हार्ट, 7 और 9 जैसा हार्ट में, और 9 जैसा ब्रेन में वो पेन शुरू हुआ, लाइक आई नेवर फेल्ट दैट काइंड ऑफ पेन इन माय लाइफ यार। मेरे को मैं ब्रीथ नहीं कर सकता था, मेरा वो जॉ ओपन नहीं हो सकता था, मेरे को एयर का हंगर हो गया। तो एयर के हंगर के लिए मैंने वो विंडो, इवन ठंड थी बार, वो फिर भी मैंने वो विंडो ओपन कर दी। उसके बाद यहाँ पे 911 लगा दी इमरजेंसी के लिए, 911 लगाया। 911 वाले आए मेरे को, तो मेरे को ले ले जा रहे थे। तब मैंने बोला, मैं तो गया, मैंने तो देखा कि मैं तो गया, मैं यमराज को चैलेंज कर रहा था। यमराज मेरे को आए कि बेटा चल, तू मेरे को चैलेंज कर रहा था ना, चल तेरे को हेवन में लेने का टाइम आ गया है, ठीक है। मैंने बोला जाते वक्त वो पैरामेडिक लोगों को बोला कि लास्ट टाइम मेरे बेटा दूसरे रूम में सो रहा है, उसको देखने दो। वो बोला इतना भी टाइम तेरे पास नहीं है। तो वो भी बिना देखे मेरे को स्ट्रेचर में ले गए हॉस्पिटल में। अबाउट 8 10 घंटे वो स्ट्रेचर में रखा, मेरा नंबर आया, नंबर के बाद बोले कि कुछ नहीं है, वापस चले जाओ। वापस मैं घर पे आया, सेम डे अबाउट दोपहर के 2 बजे सेम सिचुएशन हुआ, 7 to 9 जैसा पेन हार्ट में, अबाउट 9 जैसा पेन ब्रेन में। अगेन 911 किया, वो आए, वो बोले कि क्या करना है। मैंने बोला कि आप फिर से वापस ले जाओ। उन्होंने 2 ऑप्शन दिए कि आपके वो मेडिकल डॉक्टर के पास जाना है कि वो इमरजेंसी में आना है। मैंने बोला इमरजेंसी में आ जाओ, मैं डॉक्टर के पास चला गया तो रास्ते में वो ऊपर चला जाऊंगा, तो बेटर आप ले जाओ। फिर से वो मेरे को पैरामेडिक्स ले गए। अगेन 6 7 8 आवर्स इन द स्ट्रेचर में रहा। मेरा नंबर आया, वो बोला कि भाई लुक्स लाइक एंजाइटी अटैक जैसा लग रहा है, ये हम आपको वो सबलिंगल मेडिसिन देते हैं, तो खुदा न खास्ता ऐसा फिर से हो तो मना टंग के नीचे ये मेडिसिन रखना। तो सेम अगेन वापस घर पे आया, अगेन रात को सोने गया, सेम दिन तीसरी दफा भी सेम थिंग, 7 to 9 पेन अराउंड माय हार्ट, अबाउट 9 काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी पेन अराउंड माय ब्रेन आउट ऑफ 10। एंड अगेन थैंकफुल खुदा खास्ता एक उस मेरे पास वो सबलिंगल मेडिकेशन थी, मैंने ले ली। इसके बाद मैंने दिया कि देखो दैट्स इट, अब कोई मेरे को फ्री में भी मेडिकल के लिए वो बोले दैट्स इट। मैंने वो मरते दम जो था, मर 3 3 दफा रात में, दिन में 3 3 दफा मरने से बचा। एंड दैट्स इट, मैंने अपना एफर्ट कर दिया जितना करना था मेडिसिन के लिए। सो इसके बाद मैंने मेडिसिन के लिए ताला लगा दिया, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये बात थी। और हाँ जी, तो ये था, तो बस वही है एक्चुअली। हाँ जी। इट्स एन अमेजिंग लाइफ जर्नी। सो मैं नेक्स्ट आपसे ये पूछना चाहता हूँ, PPP
मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक पी से प्रवीण, पी से पटेल एंड थर्ड पी स्टैंड्स फॉर, ये सही बताइए। बात है। उसकी भी एक स्टोरी है। जब मैं नया नया आया था टोरंटो कनाडा में, तो मैं जैसे इंडिया में इंट्रोड्यूस करता था वैसे इंट्रोड्यूस करता था, प्रवीण कुमार प्रहलाद भाई पटेल। प्रवीण कुमार मेरा फर्स्ट नेम है, प्रहलाद भाई मेरे फादर का नेम है, लास्ट नेम पटेल है। तो सब माना नो कॉमा में चले जाते थे, किसी को समझ में नहीं आता था। इसके बाद मैंने प्रवीण कुमार पी कहना शुरू किया, सेम थिंग। प्रवीण कुमार पटेल कहना शुरू किया, सेम थिंग। प्रवीण पटेल किया, सेम थिंग। प्रवीण किया, सेम थिंग। इसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज में था, तब मैं मेरी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा था। लेट टीनेजर्स में मैं मेरी ऑटोबायोग्राफी सोच नहीं रहा था कि मैं लिखूंगा लिखूंगा, लिख रहा था पेन एंड पेपर से। मेरे फादर मेरे को मिलने के लिए आए। माय फादर इज नॉट ओनली माय फादर, माय गॉड फादर। विथ एक्सपेक्टेशन की ना ठाकुर खुश होगा, शाबाशी देगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी मेरी। मेरे फादर ने वो पेजेस देखे, इसके बाद बोले बेटा दैट्स नाइस, मगर तेरी जिंदगी तो ऐसी बना कि दुनिया तेरे बारे में लिखे, तेरे को लिखने की जरूरत ना पड़े। मैं तो 400 वर्ड की वो एक्सप्रेशन करता था, मेरे फादर ने तो माना 4 करोड़ वर्ड का झटका मेरे को दे दिया। लिखना मैंने बंद कर दिया। हालांकि उस वक्त आई फॉल इन लव विथ अ गर्ल। एक गर्ल को देखा मैं नवरात्रि की वो नाइट में, वो मंदिर जा रहा था, दोस्त मेरे को बीच में ले गए नवरात्रि देखने के लिए। एक गर्ल को देखा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे, हाँ तो घंटियां दिल में बजने लगी, ये सब वो सब। और मेरा उसूल तो था कि इंडिया की लड़की के साथ हैंकी पेंकी नहीं करनी है, बिकॉज मेरे को तो फॉरेन जाना है, मेरी तो दिलुबा फॉरेन से आएगी, मेरे पटेल सब डिवीजन ये सब वो सब। तो मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा। बस बस मगर प्यार तो प्यार होता है ना यार, ना तो प्यार तो हो गया था। ठीक है, दिल में घंटड़ियां बज गई थी। तो जो बंदा पैरट की तरह रट्टा मारने वाला बंदा मेरे से लिख ना, मैंने बहुत कुछ माना, वो लिखता गया पोएम पे पोएम आती गई, लिखता गया पोएट बना दिया प्यार ने तो दोस्तों से शेयर किया, दोस्तों बोले क्या बात है यार, तू तो ये माना यार प्यार में मजनू बन गया है यार, बहुत बढ़िया बढ़िया लिखता है यार। नोटिस बोर्ड पे लगा, छाप अपनी कविताएं नोटिस बोर्ड पे, तो मैं तो वहाँ नोटिस बोर्ड पे लगने लगा, रिकॉग्निशन मिलने लगी, वैलिडेशन मिलने लगी, बहुत अच्छा लगने लगा। तो एक और जरिया मिल गया, मूवीज तो थे मेरे को जरिया बनने की, घूम तो रहा था सूरत में, तो एक और जरिया बन गया। मगर आज तक अभी उसका चेहरा मेरे को क्रिस्टल क्लियर याद है, मगर उसका नाम वाम मैंने कभी भी पूछा नहीं है। हालांकि मैं वो टेम्पल में जाता था एवरी इवनिंग को खाने के बाद, तो रास्ते में उसका घर आता था। उसके फादर वो खमन बमन बेचते थे, तो मैं और मेरे दोस्त उसको खमन वाले के नाम से जानते हैं कि ये ना खमन वाली, दैट्स इट, वो खमन वाली। ये प्रवीण भाई के दिलरुबा, वो खमन वाली, ठीक है ना। मैंने उसको टच भी नहीं किया है, पैर का जबर नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, बिकॉज मेरा मुंह हुसूल थे, ठीक है ना। तो ऐसा था, ऐसा उसका बात था। अच्छा, तो प्रहलाद भाई का पी है, ठीक है। तो बिकॉज इसके बाद जब मैं ब्रांड कर रहा था, बुक लिख रहा था, इसके बाद मेरे को 15 साल पहले मेरे मेंटर, मेरे पहले बुक के पब्लिशर मेरे रेमंड एरन। रेमंड एरन इज राइट नाउ 76। रेमंड एरन इज द न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर। रेमंड एरन ने हजारों ऑथर्स बनाए हैं पूरी दुनिया में, उनके पास 40+ बिजनेसेस है। रेमंड एरन इज द पर्सन who went to the North Pole for the polar race in 2007 at age 62। पोलर रेस होता है 650 किलोमीटर्स का, 1 मंथ लॉन्ग फुट रेस होता है नॉर्थ पोल पे। और सबसे बड़ा खतरा होता है पोलर बेयर्स आपको खा जाने का, और वो सब उन्होंने किया 2007 में 62 एज पे। तो वो मेरे वन ऑफ द मेंटर है, वो मेरे लाइफ में आए, मैंने उनका बुक राइटिंग प्रोग्राम लिया, एंड दैट्स हाउ माय बुक आई। तो वो आल्सो ब्रांडिंग गुरु भी है, तो मैंने बोला कि अब वो ब्रांड कर रहा हो, बुक भी मेरे को ब्रांड कर रही है, तो मेरा नाम क्या रखूं। तो पहले मैं किसी को डॉक्टर डॉक्टर नहीं बताता था, मैं हाइड कर रहा था। मैंने बोला अब तो खुल के जाना है, खुले सांड की तरह जाना है, तो मैं डॉक्टर लिखने लगा। इसके बाद मैंने बोला प्रवीण का पी, प्रहलाद भाई का मिडल पी, और पटेल का लास्ट पी, ऐसे करके डॉक्टर पीपीपी बन गया। पहली बुक जो किसके बारे में लिखनी, तो मैंने बोला सेलिब्रिटी के बारे में लिखूंगा, पूरी दुनिया पूरी लाइफ में मैंने यही किया है, सेलिब्रिटी की ऑटोग्राफ फोटोग्राफ ये सब वो सब। वैसे बुक का नाम हो गया यू आर द सेलिब्रिटी, आप सेलिब्रिटी हो, बिकॉज when you came in the womb uterus of your own mom, there are 700 million sperm were ready to fertilize the egg ovum of your own mom. Out of 700 millions, my brother, you came as a celebrity. Yes, you are the celebrity. Then you became of 1 cell, 2 cell, 4 cells, and so forth. Now look at you. You are the powerhouse of multi-trillion cells. Yes, you are the celebrity. And ऐसे दुनिया का one and only the celebrity guru Dr. P.P. बन गया। Bethreen, you explain whole the biology, then how a child can make, or like 1 cell, 2 cell, 4 cell, meiosis, mitosis, and the whole biology you can explain it. Okay, that's fine. So, Dr. PPP, next I want to ask you how the idea came into your mind that you need to write a book
one book, two book, three book, four book? How and where you started writing books? ओके जो जैसे मैंने स्टोरी की ना, जब मैं टीनेजर्स में था, तो बस सडनली आइडिया है कि ऑटोबायोग्राफी लिखनी चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी जी ली है 17 18 19 साल में। तो आया इसके बाद वो रामायण महाभारत के बारे में भी, जो होली हमारी एपिक होती है उसके बारे में भी लिख रहा था। तो ऐसे बस ऊपर वाले ने आइडिया दिया, देने वाला ऊपर वाला होता है। वरना जो बंदा मैंने रट्टा मारता था गुजराती में, वो बंदा मैंने गुजराती में, और वो बीच में वो आ गई, वो मेरी प्यार में गिर गया, तो मैंने ऑटोमेटिक वो आने लगी थी, वो सब पोएम पोएम वो सब ठीक, तो वो भी उसमें हेल्प किया, वो ऑटोबायोग्राफी लिखने, ये सब वो सब तो होता है। इसके बाद तो मैंने एक दफा बाइक सीखते हो, बाइसिकल सीखते हो ना, तो मैंने 50 साल के बाद ही बाइसिकल बैठोगे ना तो आ जाएगी। तो वो मैंने एक्सपीरियंस था जब वो मेरे मेंटर आए, ये सब वो सब। तो इसके बाद तो वही है। तो इसके बाद तो अब हजारों ऑथर को जानने लगा हूँ। तो जो ऑथर बनना है तो देन यू सराउंड विद ऑथर। तो मैं थ्रू रेमंड में हजारों ऑथर से मिला, ये सब वो सब एंड देन वन बुक। पहली बुक मेरी 47 HP आई, इसके बाद 4 बुक आई, एक साल में आ गई 4 बुक है। देखो पहले ही बुक के लिए 47 साल मेरे को पहुंचना था, हो गए। इसके बाद नेक्स्ट साल, एक साल में 4 बुक किया, इसमें से 2 कनेडियन बेस्ट सेलर बनी, 2 इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गई। जो मेरा 25 साल पुराना सपना था कि मैं ऐसा कुछ क्रेजी कर जाऊंगा, मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा दुनिया के लिए, और वो भी हो गया। मैंने ऐसा नहीं था कि बुक लिख के मैं गिनीज बुक लिख के वो मैं गिनीज वर्ल्ड, मैं सपना देखा तब मेरे को मालूम था कैसे मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनूंगा। मगर देखो यार क्या बोलता है यार कि भाई यार आप चले जाओ, कारवा बनता जाएगा। Gandhi never looked back how many people are following him when he went for the freedom, and the Dandi Kuch. But Gandhi knew that this is the right thing to do, and that's it. And then I knew सपना तो मैं बचपन से देखता हूँ, वाइल्ड सपने देखता हूँ यार। मेरा एक कोटेशन है कि सूरज जाने के सपने देखो या चांद तारे तो यूं ही मिल जाएंगे। सूरज पाने के सपने देखो, चांद तारे तो यूं ही मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन डॉक्टर पीपीपी। इट्स एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन टू हैविंग अ टाइम विद यू। सो नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब आपकी जो बुक है, अगर मेरे जैसा कोई नाकिस इल्म वाला बंदा, जैसे मैं टीचर हूँ, पढ़ना चाहता हो तो उसका क्या प्रोसीजर है? कैसे वो उस बुक को परचेज कर सकता है, ले सकता है? जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ तो आप वहाँ पे कनाडा में बैठे हैं, तो कैसे ये अमेजोन से या कैसे मंगवाई जा सकती है? क्या तरीका है, बताइएगा। अच्छा, मेरी बहुत बढ़िया सवाल पूछा है शेख साहब। दुनिया के सभी अमेजोन में मेरी सभी बुकें हैं। तो कोई भी दुनिया में कोई भी कंट्री में अमेजोन अवेलेबल है आपके कंट्री में, देन आप मेरी बुक अवेलेबल है। मेरी बुक का टाइटल लिखिए, यू आर द सेलिब्रिटी, एंड ये पिक्चर आ जाएगा। ये हाइडी क्लूम है, वो अमेरिका का टैलेंट है, आपने शायद नाम सुना हो, तो उसकी वो होस्ट है, उसका वो पिक्चर है, वो मेरी कवर गर्ल है, एंड दैट्स इट। मगर आपके लिए ओके, बिकॉज आपने मेरे को होस्ट किया है तो मेरे को सरप्राइज देना है। आपके लिए है कि आप मेरे को अपना ईमेल शेयर करना मेरे साथ, तो मैं आपके ईमेल में मेरी मैन्युस्क्रिप्ट आपको भेज दूंगा। सो फ्री में आपको मेरी बुक की PDF और ई बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। ए बुक मैं भेज दूंगा आपको, ठीक। ठीक है, माइक माइक म्यूट कीजिएगा। डॉक्टर बीबी, ये तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग गिफ्ट हो गया, यकीन करें। और मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर इसको पढ़ के, इससे मैं जो सीखूंगा, इसके ऊपर मैं एक वीडियो रिव्यू बनाऊंगा इस बुक का, कि ये किस रिलेटेड है, इससे मैंने क्या सीखा, इसमें क्या मुझे सीखने को मिला, और डॉक्टर पीपीपी के जो एक्सपीरियंसेस इस बुक के अंदर सारे हैं, वहां से मैंने क्या लर्न किया, वो सारा मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अगला मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे जैसा एक नाकिस इल्म वाला बंदा, कम इल्म वाला बंदा, या मेरे जैसा एक नालायक बंदा अगर एक बुक बनाना चाहता है, लिखना चाहता है, तो वो क्या करे, किस चीज पे लिखे, कहाँ से स्टार्ट करे, क्या तरीका कार है? बढ़िया सवाल पूछा है आपने शेख साहब। अगेन, अपने आप को नालायक वाला कभी मत समझो। अ, अल्लाह पाक इसके बाद आपको रखो, मेरे को भी न मत रखो, और दुनिया के किसी भी बंदे को मत रखो, ठीक है ना। तो ये बात है, ओके, ये बात है। दूसरी बात, मैंने बहुत सारे लोगों को ऑथर बनाया है, ठीक है। 13 लोगों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑथर भी बनाया है, एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑथर भी बनाया है 13 लोगों को। इस बुक में पाकिस्तान का एक बंदा है, आमिर भाईजान, आमिर खान, आमिर मुश्ताक, उसको भी कोविड-19 लॉकडाउन, लाइक एवरीबॉडी मस्ट नीड दिस बुक, कोविड-19 लॉकडाउन, उसमें वो ऑथर बनाया है। पाकिस्तान में मैं एक बुक ला रहा हूँ पाकिस्तान के लोगों के लिए। उसमें अबाउट लाइक 15 से 20 ऑथर हो गए, 15 से बहुत, इस बुक में लाइक अबाउट 20 ऑथर है, राइट। ऐसा तो आपको एक चैप्टर लिखना है। आपको डोंट वरी अबाउट कवर, बुक कवर। मेरा पब्लिशर है, मेरा फ्रेंड है जिसने मेरी 5 बुकें छापी है, ये छाप देगा बुक, ठीक है ना। आपको मानना एक चैप्टर लिखना है, अबाउट 2000 वर्ड्स का एक चैप्टर लिखना है,
और 300 वर्ड्स मैक्सिमम के बारे में आपका बायो लिखना है। उसको बायो कहते हैं कि भाई आप ऑथर, आपको बनना ऑथर है तो सिक्स आप कौन है, 300 वर्ड मैक्सिमम है। आपको 50 वर्ड भी लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हैं, डिपेंड, मगर मैक्सिमम 300 वर्ड। और चैप्टर 2000 वर्ड का चैप्टर लिखे। और जनरली ही यूज्ड टू चार्ज अबाउट $1500, $1500 प्लस टैक्स वो चार्ज करता था, मगर बिकॉज ऑफ कोविड वो बंदा $100 ही चार्ज करता है। और वो अमेरिकन भी नहीं, टैक्स भी नहीं जो चार्ज करता है, ओनली $100 कनेडियन में आप ऑथर बन सकते हैं। और वो मनी, पूरे मनी उस पे जाएंगे, मेरे को एक पेनी भी नहीं मिलेगा। आई डोंट वांट पेनी। मैं आपको ऑथर बन गए, मेरे को खुशी हो गई, बिकॉज मैंने, मेरी बुक ने, माई बुक आर माई बेबीज, मेरी बुक ने दुनिया चेंज की है और कर रही है। एंड ऐसे मैं भी आई वाना सी लाइक स्माइल की भाई डॉक्टर पीपी की वजह से मैं ऑथर बना, बस इतने का एक बंदा हो गए, दैट्स इट, तो वही है। तो दैट्स इट। सो कनेक्ट विथ मी, मैसेज में आप लिखे कि यस और कमेंट और ये सब वो सब, कनेक्ट विथ मी एंड बोले कि मेरे को ऑथर बनना है, मैं कनेक्ट कराऊंगा। ऐसी बुक मैं इंडिया से भी ला रहा हूँ, नॉन इंडियन, तो पाकिस्तानी और नॉन पाकिस्तानी के लिए बुक ला रहा हूँ, इंडियन और नॉन इंडियन के रेसिडेंट के लिए बुक ला रहा हूँ। और आप इंडिया पाकिस्तान पैदा नहीं हुए हो, दुनिया के कोई भी कंट्री पैदा हुई हो, फिर भी $100 में आप ऑथर बन सकते हैं। अपना एक चैप्टर लिखना है एंड दैट्स इट। एक चैप्टर लिख के आप ऑथर बन सकते हैं। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिग्री आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। मेरा मेडिसिन में 8 साल गुजरे हैं, इससे भी बड़ा मैं ऑथर को मैं मानता हूँ। थैंक यू। सही है। अच्छा डॉक्टर पीपीपी, अगला सवाल पूछ सकता हूँ अगर आप इजाजत दे तो? ओके, माइक 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 माइक। मेरे पास अब 2-3 मिनट है, बिकॉज राजा राजा अरशद जो पॉलिटिक्स में इंसान पार्टी के कोऑर्डिनेटर है, रेहान भाई उसके वो फाउंडर है, वो मेरे को इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। 2-3 मिनट मेरे पास है आपके लिए, तो गो हेड। ठीक है। अच्छा डॉक्टर पीपीपी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। पहले तो मैं आपका थैंक यू कहूंगा कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया। अभी एक छोटा सा मैसेज, कोई छोटी सी एडवाइस हमारी ऑडियंस के लिए दीजिएगा, फिर अपनी बात को इख्तिताम कीजिएगा। जी डॉक्टर पीपीपी। पहले तो मैं कौन बंदा होता हूँ कि एडवाइस देने वाला यार, मैं भी सीख रहा हूँ यार, मैं भी आप जैसी तरह ही अल्लाह का बंदा हूँ। मैं भी फार्मर फैमिली, मेरे मदर, ग्रैंड फादर सब फार्मर फार्मर थे, ठीक है ना, तो वही है, ठीक है। मगर आपने एज ए ब्रदरली शेयर करना चाहता हूँ कि यार स्पिरिचुअलिटी आज 3 क्वेश्चन, स्पिरिचुअलिटी 3 सवाल पूछती है, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा। जो दुनिया के सभी रिलीजन है अल्टीमेटली वो 3 सवाल के आंसर देते हैं। जो जो टाइम पे वो पे आए, मैसेंजर आए, नबी आए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो मैसेज शेयर किया। जो मैं अंडरस्टैंड किया हूँ स्पिरिचुअलिटी क्या है, हु एम आई एम द सोल केम फ्रॉम द सुप्रीम सोल, आई एम द सेलिब्रिटी केम फ्रॉम द सेलिब्रिटी क्रिएटर, ठीक है। दूसरा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम द अवेकन सोल, I am the awakened celebrity and awakening you, awakening the celebrity within you and 1 billion plus people. मैं अवेकन हो चुका हूँ ऑलरेडी, और आपके अंदर के सेलिब्रिटी को अवेकन कर रहा हूँ, आपके अंदर के स्पिरिचुअलिटी को अवेकन कर रहा हूँ। एंड आप जैसे 1 बिलियन लोगों को करने आया हूँ इस दुनिया में, वो मेरा इस दुनिया में आने का मकसद है, ठीक है। मैं कहाँ जाऊंगा, आई केम फ्रॉम द सेलिब्रिटी क्रिएटर एंड आई वेंट बैक टू द सेलिब्रिटी क्रिएटर वेयर आई केम फ्रॉम। तो ये समझाऊँ, बिलीव इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, don't let anybody steal your dreams, just do it now. If Trump can win, 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 so can you. If Trump can lose, so can you. You have the celebrity day, you have the celebrity life, you are the celebrity. Thank you so much Saeed Saab, as well as thank you so much मेरे जानने वाले। Share it, share it, share it, share it, share it, share it. Okay, the Dr. PPP Celebrity Guru, thank you so much for giving me your valuable time. और यहाँ पे मैं अशफाक अहमद के कोटेशन के साथ अपनी बात का इख्तिताम करूँगा कि अल्लाह पाक हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और हम सबको आगे आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। डॉक्टर पीपीपी अगेन वंस अगेन आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। दोस्तों शुक्रिया इस शो को देखने का। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।